Hello students, in the previous class we studied the chapter The Story of Village Palampur, which is based on a real life village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. It is a research study or case study, okay? Palampur itself is an imaginary village, okay? But the case study which is given in your textbook is based on a real village which is in western Uttar Pradesh, okay? So we studied that what is the composition of population in Palampur, right? 450 families are living there. Farming in Palampur, okay? 200 hectares cultivated area of land with full capacity of irrigation, facility of irrigation is cultivated there, okay? And then we studied about distribution of agricultural land in Palampur, which is uneven. Source of labor in Palampur, which are small farmers and landless laborers. Source of capital, okay? Source of capital is mostly the money lenders of the village and large farmers, okay? For the small farmers, the source of capital for the small farmers are the money lenders of the village and the large farmers, which have more than 2 hectares of land. And then we study about the selling of farm products, right? That the small farmers cannot sell their product as they have not surplus quantity of product, right? But the large farmers can sell their product and are selling their product in Palampur because they have surplus quantity of products, surplus quantity of crops, okay? So this was the matter, the things we studied in the previous class. Today we will study about activities besides farming, okay? What are the activities which are carried out in the Palampur village besides farming, okay? So first of all, dairy, okay? Milk production is also a side business of the villagers. Many families of this village Palampur keep buffaloes and sell their extra milk. Milk production is also side business of the villagers. Many families of this village Palampur keep buffaloes and sell their extra milk. Many families in Palampur keep buffaloes and sell their extra milk, which is surplus after consuming for their own needs, okay? जो पालमपुर है उसमें कई फैमिलीज़ के पास बफेलोज़ हैं और वो जो उनका एक्स्ट्रा मिल्क है वो बेचते हैं, ओके? सो डेयरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पर पालमपुर में. Two traders of nearby town Shahpur have set up milk collection cum chilling centers at nearby village रायगंज. जो हमने पढ़ा था कि रायगंज जो है वो नियरेस्ट लार्ज विलेज है, ठीक है ना, और शाहपुर जो है वो टाउन है जो कि पालमपुर के पास है. तो शाहपुर जो टाउन है वहाँ के 2 ट्रेडर्स ने मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, ठीक है, चिलिंग सेंटर्स और मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, यानी कि वहाँ पर मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पर मिल्क जो है वो रखा जाता है और मतलब ठंडा रखा जाता है ताकि वो सही रहे, है ना. तो कलेक्शन सेंटर्स और चिलिंग सेंटर्स वहाँ पर बनाए हैं 2 ट्रेडर्स जो कि शाहपुर के हैं, ओके. एक्चुअली मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स आप ऐसे समझिए कि फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर जो विलेजर्स हैं जिनके पास सरप्लस मिल्क है वो आके कलेक्ट करते हैं, है ना, मिल्क वो आके देते हैं और फिर वहाँ पर इन सेंटर्स पर कलेक्ट किया जाता है उनका मिल्क और ठंडा रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और फिर वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है ना. तो उन्हें बोलते हैं मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स. तो शाहपुर के 2 ट्रेडर्स ने वहाँ पर ये सेटअप किए हुए हैं, ठीक है ना. कहाँ पर? रायगंज में. तो जो यहाँ के फार्मर्स हैं जिनके पास बफेलोज़ हैं पालमपुर के, वो रायगंज के इन सेंटर्स पे देने जाते हैं, ठीक है.
एंड ट्रांसपोर्ट दिस कलेक्टेड मिल्क टू मेन सिटीज़, और वहाँ से वो इन सेंटर से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है मिल्क लार्ज सिटीज़ में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर सम एक्स्ट्रा इनकम, इससे जो फार्मर्स हैं उनके पास सम एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। देन आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेरी फ्यू पीपल लेस देन 50 ऑफ पालमपुर आर एंगेज्ड इन सम सिंपल प्रोडक्शन वर्क्स यूटिलाइजिंग स्मॉल पावर कनेक्शंस, ठीक है ना। बहुत कम लोग, लेस देन 50, क्योंकि हमने पढ़ा था 450 फैमिलीज रह रही हैं पालमपुर में, ठीक है। तो उनमें से सिर्फ 50 लोग, ठीक है ना, और पालमपुर आर एंगेज्ड इन सम सिंपल प्रोडक्शन वर्क्स यूटिलाइजिंग स्मॉल पावर कनेक्शंस, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं। 50 से के लगभग लोग, है ना, 50 के लगभग लोग मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं, है ना, जो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत कम है पालमपुर में, ओके। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बहुत कम है, जो मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर के लोगों का वो क्या है, एग्रीकल्चर, ओके। दीज मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स आर डन एट देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं, उनके खुद के घरों में ही, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। दे नीड नॉट हायर द लेबर फ्रॉम अदर फैमिलीज, और उनको लेबर हायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, जैसा कि लार्ज सिटीज़ में आप देखते हो, है ना, अमूल की प्रोसेसिंग यूनिट आपने देखी हो अगर, या पार्ले जी की फैक्ट्री देखी हो, या और कोई भी आपने फैक्ट्रीज देखी हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर, है ना, मशीनरी होती है, रॉ मटेरियल होता है, स्टोर, है ना, प्रोसेसिंग होती है। लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, छोटी छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि लोगों के घरों में ही उन्होंने बना रखी हैं, और उसके लिए वो कोई लेबर भी हायर नहीं करते, ओके। Shops in Palampur. There are some general stores in Palampur which sell a wide range of daily need items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, ये सब चीज़ें, यानी कि there are some general stores in Palampur. कुछ जनरल स्टोर्स हैं पालमपुर में, ठीक है ना, जो कि डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, ठीक है, बिस्किट्स, सोप, ये सब बेचते हैं। जनरल स्टोर्स जो होते हैं ना, वो कुछ हैं शॉप्स वहाँ पर पालमपुर में। सम पीपल हैव ओपनड स्मॉल रेस्टोरेंट्स इन देयर हाउसेज नियर बस स्टैंड, कुछ पालमपुर के लोगों ने स्मॉल रेस्टोरेंट्स भी खोल लिए बस स्टैंड के पास, पालमपुर के बस स्टैंड के पास, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएँ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन पालमपुर, a big village Raiganj is 3 kilometers away from this village and connected to it by a road. Okay, a big village Raiganj is 3 kilometers away from this village and connected to it by a road. Many kinds of vehicles like rickshaws, tongas, jeeps, bogies, bullock carts and tractor trolleys can be seen running on this road. Okay, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है पालमपुर में वो क्या है, अ बिग विलेज रायगंज इज 3 किलोमीटर, जो बिग विलेज है जो मैंने अभी बताया था रायगंज, वो 3 किलोमीटर है वहाँ से, पालमपुर से, ओके, एंड कनेक्टेड टू इट बाय अ रोड, और वो एक रोड से कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक रिक्शाज, तोंगास, जीप्स, बोगीज, बुलक कार्ट्स वहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है पालमपुर में, 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, सबसे बड़ा विलेज जो पालमपुर के पास है, और वहाँ पर रिक्शाज, तोंगास, जीप्स वहाँ के लिए, बोगीज, बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज चलती हैं, ठीक है ना। देर आर मैनी पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द पीपल फ्रॉम पालमपुर टू रायगंज और वाइस वर्सा। बहुत सारे लोग जो हैं
वो इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में ऑक्यूपेशन में रहते हैं, यानी कि उनका ऑक्यूपेशन ये ट्रांसपोर्टेशन का ही है ना। वो ये सब चीज़ें चलाते हैं जैसे कि रिक्शा, तांगा, जीप्स, बोगीज, बुलक कार्ट्स। ओके, तो ये वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पर कोई रेलवेज़ नहीं है ना, और कोई बड़ा मेट्रो या कुछ ऐसा नहीं है ना। वहाँ पर सिर्फ रिक्शास, तांगास, जीप्स ये सभी चलते हैं। ओके, देन स्टोरीज ऑफ सम विलेजर्स ऑफ पालमपुर। बोथ दला एंड रामकली आर among the poorest residents of the village Palampur. दला एंड रामकली दो उन लोगों में से हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुअर हैं पालमपुर में। ओके, बोथ आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर बिकॉज दे आर अंडर डेट एंड हैव नो होप टू कम आउट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा वरीड है। क्यों वरीड है? क्योंकि वो डेट से लदे हुए हैं, कर्ज से लदे हुए हैं। ठीक है ना। And Ramkali thinks that she will get job for less days in coming harvesting season because the large farmer Ghanshyam has just bought a harvester, a reaping machine. और रामकली को लगता है कि आने वाले दिन में उसे और कम काम मिलेगा क्योंकि जो घनश्याम है, जो लार्ज फार्मर है पालमपुर का, वो एक हार्वेस्टर ले आया, अ रीपिंग मशीन। ओके, एंड देयरफॉर ही वुड नॉट एम्प्लॉय लेबर फॉर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप, and therefore he would not employ labor for harvesting his crop. Okay, likewise Dala thinks that large farmers have bought agriculture machines for almost all farm activities, so it is clear that he will not get job for more days now. एक्चुअली क्या है, द स्टोरी ऑफ दला एंड रामकली ये है कि वो बहुत पुअर लोग हैं, है ना, पालमपुर में सबसे पुअर फैमिलीज़ में से एक है। तो वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है ना, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो क्या है, रामकली और दला को अब ये लगता है कि जैसे घनश्याम है लार्ज फार्मर पालमपुर का, वो एक हार्वेस्टर ले आया है, एक रीपिंग मशीन। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको काम कब कब मिलता है, एक तो सोइंग के टाइम पे जब बुवाई होती है, और एक हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब फसल की कटाई होती है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे घनश्याम रीपिंग मशीन ले आया, हार्वेस्टर ले आया, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो मशीन से काटेगा फसल, तो इसलिए अब उसे लेबरर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं है घनश्याम को। तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं जैसे दला और रामकली, उनको जो काम मिलता था हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो अब नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको ये फिक्र है कि जो हमने पहले से कर्ज ले रखा है वो कैसे चुकाएंगे अगर हमें काम नहीं मिलेगा। ठीक है, देन द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह। ये एक्चुअली क्या है, बहुत बड़े प्रॉब्लम है इंडिया में कि जो मशीन्स हैं, है ना, वो जो लोगों का काम है, जो लैंडलेस लेबरर्स का काम है, वो ख़त्म कर रही हैं, है ना। जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कंबाइन, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनका काम ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि अब मशीन से काम होते हैं सारे, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, है ना। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और उनका कर्ज भी बढ़ रहा है लैंडलेस लेबरर्स का। ओके, द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह। अब द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह क्या है? सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर ऑफ विलेज पालमपुर। बिसाइड्स कल्टिवेटिंग हर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, शी इज़ ऑल्सो वर्क्स फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एज अ लेबरर। सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है विलेज पालमपुर में। ठीक है, दला एंड रामकली तो लैंडलेस लेबरर्स थे। सविता क्या है, स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ओके, शी ऑल्सो वर्क्स फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एज अ लेबरर, लेकिन वो भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए काम करती है एज अ लेबरर। दिस ईयर शी बोरोज सम मनी फ्रॉम अ लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह फॉर हर फार्म नीड्स, और उसने अपनी फसल के लिए तेजपाल सिंह से इस साल कुछ पैसे लिए हैं। ठीक है ना, अपनी फसल उगाने के लिए। क्योंकि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है पैसों की फसल उगाने के लिए? क्योंकि आपको सीड्स खरीदने हैं, है ना, फसल उगाने के लिए फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं, दूसरे टूल्स खरीदने हैं,
पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, है ना, मैन्योर खरीदना है, और दूसरी जो अगर कोई बीमारी लग गई तो उसके लिए दवाई खरीदनी है स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इसलिए मनी आपको इन्वेस्ट करनी होती है क्रॉप लगाने के लिए। तो क्योंकि सविता स्मॉल फार्मर है तो उसने लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह से पैसे लिए हैं। अब क्या हुआ, उधार पे पैसे लिए हैं, ठीक है ना। तो तेजपाल गिव्स मनी टू हर फॉर 4 months बट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 24%। तेजपाल ने उसको लोन पे मनी तो दे दी है, लार्ज फार्मर है जो, लेकिन उसने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रखा है, दैट इज़ 24%। ओके, 24% मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, यानी कि आपको 100 रुपये पर 24 रुपये इंटरेस्ट देना होगा सिर्फ 4 months के लिए, समझ रहे हो आप, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। यानी कि आपको, अगर आपने 100 रुपये तेजपाल सिंह से लिए हैं तो आपको 4 महीने बाद 124 रुपये देने होंगे। ओके, ही ऑल्सो गेट्स हर वर्ड्स एज शी वुड वर्क एट हिज फील्ड्स इन हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है ना। ही ऑल्सो गेट्स हर वर्ड्स दैट शी वुड वर्क एट हिज फील्ड्स इन हार्वेस्टिंग सीजन, और उसने सविता से ये भी प्रॉमिस ले लिया है कि आप हार्वेस्टिंग सीजन में हमारे फील्ड्स पर काम करोगे, ठीक है ना। नाउ सविता इज अंडर स्ट्रेस टू थिंक हाउ शी वुड मैनेज हर चिल्ड्रन, हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड हर फार्म एक्टिविटीज़ इन एडिशन टू वर्किंग एट तेजपाल्स फील्ड्स। अब सविता को ये चिंता है कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी, अपने घर को कैसे संभालेगी, अपने फील्ड में भी काम करेगी और अब तेजपाल के फील्ड में भी काम करना पड़ेगा, और उसे इंटरेस्ट तो चुकाना ही है, यानी कि उसे बहुत कुछ संभालना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसे चिंता है कि ये सब वो कैसे करेगी। इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम बताई गई है कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस लेबरर्स को पैसे देते हैं, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है। इसलिए जो अगर आपको लोन लेना हो तो बैंक से लें, है ना, मनी लेंडर से, लार्ज फार्मर से ना लें, क्योंकि वहाँ की इंटरेस्ट रेट बैंक की कम होती है, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। ओके, देन आता है मिश्री लाल, अ नेटिव ऑफ विलेज पालमपुर, हैज़ परचेज्ड अ शुगर केन क्रशिंग मशीन। एक मिश्री लाल है, नेटिव पालमपुर विलेज का रहने वाला ही है ना। वो उसने क्या किया, शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है ना। ही बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस दैम इनटू गुड़। और वो क्या करता है, दूसरों से शुगर केन खरीदता है, यानी कि गन्ना खरीदता है फार्मर से, और उसे प्रोसेस करता है गुड़ में, ठीक है ना, गुड़ बनाता है। देन ही सोल्ड जैगरी टू ट्रेडर्स एट नियर बाय टाउन शाहपुर, और फिर उस गुड़ को वो नियर बाय टाउन जो है पालमपुर का, शाहपुर, है ना, जो पास में एक टाउन है, छोटा सा शहर है, वहाँ जाके उस गुड़ को बेचता है। दिस वर्क गिव्स हिम अ स्मॉल प्रॉफिट, और इससे वो कुछ छोटा सा प्रॉफिट कमाता है मिश्री लाल, ठीक है। अब द स्टोरी ऑफ करीम। Karim, a native of village Palampur, has opened a computer class center in the village to educate young students computer skills. Many high school students are attending computer classes in his center. जो करीम है ना, वो भी पालमपुर में ही रहता है, और उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है पालमपुर में ही, है ना, और उसमें वो एजुकेट करता है यंग स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स। और बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी कंप्यूटर क्लासेस अटेंड भी करते हैं। ही हैज़ एम्प्लॉयड 2 वुमेन कैंडिडेट्स एज इंस्ट्रक्टर्स एज दे हैव डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसने 2 वुमेन को इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर भी रखा हुआ है अपने कंप्यूटर सेंटर में, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री है। इसमें आपको ये एक्चुअली बता रहा है कि वहाँ पर कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई है पालमपुर में, है ना, मॉडर्नाइज होना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस खुल गई हैं। तो अब वहाँ पर टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप होना शुरू हो गया है। अब तक हम किस में थे, एग्रीकल्चर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में थे, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, है ना, देन अब आ रहा है टेरिशरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ओके, क्योंकि आप कंप्यूटर स्किल सीख जाएंगे तो आपके जॉब लगने के और सर्विस सेक्टर में काम करने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप होने लग गया पालमपुर में। द स्टोरी ऑफ किशोर।
किशोर, अ फार्म लेबरर ऑफ विलेज पालमपुर, प्लान्स टू इंक्रीज हिज इनकम टू मीट हिज फैमिली नीड्स। किशोर जो है फार्म लेबरर है ऑफ विलेज पालमपुर, प्लान्स टू इंक्रीज हिज इनकम टू मीट हिज फैमिली नीड्स, और उसने सोचा है कि वो अपनी इनकम बढ़ा के अपनी फैमिली नीड्स को और अच्छे से फुलफ़िल करेगा। ही टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड बॉट अ बफेलो, और उसने क्या किया, इसके लिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया और एक बफेलो खरीदी। नाउ ही सेल्स मिल्क एंड अर्न सम मोर मनी, और वो खेती तो पहले करता ही था, फार्म लेबर था, ठीक है ना। तो फार्म लेबरर था, फिर उसने बैंक से लोन लिया, एक बफेलो खरीदी, अब वो मिल्क भी सेल करता है और एक्स्ट्रा कुछ मनी उसके पास आती है उससे, प्रॉफिट से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट ही अरेंजेज अ वुडन कार्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स थिंग्स लाइक जैगरी, और इसके अलावा उसने एक वुडन कार्ट भी खरीदी है जिस पर वो गुड़ जो है, क्ले, जैगरी और क्ले ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इन दिस वे ही स्टार्ट्स अर्निंग मोर मनी टू फीड हिज फैमिली, और इससे वो ज़्यादा पैसे कमाने लग गया है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना। तो ये क्यों बताया गया आपको, इससे ये पता चलता है कि पालमपुर में कुछ लोग हैं वो मल्टीपल प्रोफेशंस भी हैं उनके, है ना। यानी कि जैसे किशोर है वो फार्मर भी है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बेचता है, वो जो है वो वुडन कार्ट पर ट्रांसपोर्ट भी करता है चीज़ें, ठीक है ना। तो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पालमपुर के कुछ लोग मल्टीपल प्रोफेशंस में भी हैं, मल्टीपल ऑक्यूपेशंस में हैं, है ना, ये आपको बता रहा है। ओके, तो ये था आपके केस स्टडीज़ अब तक की सारी, है ना, जो स्टोरीज़ थी। ओके, देन अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इन सब का समरी क्या है ना। इसको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी जैसे लैंडलेस लेबरर्स की प्रॉब्लम है ना, कि वो जब मशीनरी आने की वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, या जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, है ना, और जैसे टेरिटरी सेक्टर है वो कम डेवलप्ड है पालमपुर में, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है ना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आपका होम असाइनमेंट क्या है कि आपको अपने आसपास ये जो हमने आज सारी स्टोरीज़ पढ़ी, करीम की, किशोर की, सविता की, मिश्री लाल की, अपने आसपास इन जैसे लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, जिनके बारे में आपने सुना हो, और ज़्यादा बड़ा नहीं, पॉइंट्स में, है ना, 5 पॉइंट्स उनके ऊपर लिखने हैं कि वो क्या ऑक्यूपेशन है उनका, है ना, और वो कैसे अपनी फैमिलीज़ की नीड्स पूरी करते हैं, है ना। और आपको क्या लगता है कि वो नीड्स पूरी कर पाते होंगे अपने काम से फैमिलीज़ की, या नहीं कर पाते होंगे, और नहीं कर पाते होंगे तो उसके रीज़न्स क्या है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी। ओके, थैंक यू।